Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, we are starting with the sum number 4 of practical problem, resolution of partner. Okay. Question number 4. X, Y and Z were carrying on business. They share profit and losses in the ratio 5 raised to 3 raised to 2 respectively. Their balance sheet as on 31st March 2010 was as under. Balance sheet as on 31st March 2010. The asset, plant and machinery 20,000, investment 8,000, stock 30,000 is given. Debtors 18,000 less RDD 1,000 equals to 17,000. Cash in hand 2,000 and cash at bank is 3,000. Total value 80,000. Liability, creditor liability is 21,000. Y loan, internal loan is there. Y loan 5,000. Reserve fund is 20,000. Capital of X 20,000, Y 10,000 and Z is 4,000. On the above date, the firm was dissolved and the asset realized as under. Number 1, investment 5,000, stock 24 and debtors 15,000. Number 2, the plant and machinery was taken over by Mr. X at book value. Number 3, sundry creditor and Mr. Y loan were paid in full. Number 4, realization expenses incurred rupees 1,000. Prepare realization account, partner capital and bank account. So in this sum we have to prepare realization, partner capital and bank account. Ledger sum is there. We will sort out the same. So follow the instruction properly so that it will be helpful for you to solve the sum in future. Okay. So the asset, plant and machinery, investment in stock, debtors, we will transfer to realization account, as this first step is we have to realize what is the asset and what is the liability. So we will transfer the particular asset excluding cash at bank and cash in hand. Okay. So here I have noted in realization account debit side, to sundry asset, plant and machinery value is 20,000. I will note in inner column 20,000, not here, sorry, 20,000 plant and machinery. Investment is 8,000, stock is 30,000, debtor is 18,000. We have to note, not 17. 18,000 we will note. In RDD we will show in a realization credit side. Okay. Now totaling the same, 20 plus 8 28 and 30 58, 58 plus 10 68 plus 8 76. The total value is 76,000. Now from this analyze we got the answer that total asset or sundry asset, yeah, general asset is 76,000. Okay. Now in credit side we will mention sundry liability, general liability, that is sundry creditor value is 21,000. Y loan will be not there as a sundry liability. It is an internal loan given by a partner. Okay, only one is there, so the value we can directly note 21,000 in the outer column. Now RDD, so by RDD account, that is 1,000. RDD account 1,000 we have to mention here. Okay. Now cash in hand and cash in bank we will transfer to bank and cash in bank account. 2 plus 3 5,000. Cash and bank account. In debit side, to balance brought down, total value we will be 5,000. 2 plus 3 5,000. Okay. So asset side completely we have transferred the value. Now on liability, Y loan was given, so there will be
we can mention one separate account for your acknowledgement as a Y loan account. It is a rough account I am preparing. So debit, credit. Okay. So Y loan is mentioned in a liability side, so we will mention the value in a credit side by balance brought down. Value is 5,000. Okay, that's it. Reserve fund 20,000 is given. Transfer to partners capital account. Capital is given. Transfer to partners capital account. First credit side we will mention partners capital, that is by balance brought down. Space is less, so I am writing in short. You should write in a full form. X, Y and Z. 20,000, 10,000, 4,000. Now second reserve fund is given. Reserve fund value is 20,000. Ratio is 5 raised to 3 raised to 2. So 5 plus 3 plus 2 is 10. 20,000 डिवाइड बाई 10 करना है. 20,000 डिवाइड बाई 10 आप करेंगे तो 1 शेयर आपको मिलेगा 2,000 का. तो 2,000 इंटू 5 करो तो 10,000 होता है. तो x का वैल्यू रिजर्व फंड के नाम से 10,000 मिलेगा. इंटू 3 करोगे 2,000 को तो 6 होगा. इंटू 2 को 2 to the 4 होगा. So this will be the sharing of reserve fund by the partners. So this was the first step of converting balance sheet to the particular account, that is realization account, transferring the capital in reserve fund to the partners capital, and cash at bank and cash in hand to bank account. Now we will start with the adjustment. The number one was investment 5,000, stock 24,000 and debtors 15,000. The value of asset realized. मैंने अब ये एसेट को बेचा गया और इस पर ये पैसे आया है. इन्वेस्टमेंट के नाम पे 5,000, स्टॉक के नाम पे 24,000 और डेटर्स 15,000 मिला है. टोटल हो गया 5 प्लस 24 29 और 15 39 44,000 मिल जाएगा. तो रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड में लिखने का बाय कैश एंड बैंक अकाउंट. अब यहाँ पर कैश और बैंक दोनों जिक्र इसलिए कैश एंड बैंक लिखा. अगर बैंक ले रहता तो खाली बैंक लिखते. पहला रियलाइज हुआ इन्वेस्टमेंट, कितना मिला 5,000 लिख दिए. स्टॉक पे जो अमाउंट एडजस्टमेंट में दिख रहा है वही लिखना है 24,000. डेटर्स रियलाइज हुआ है 15,000. और कोई एसेट तो बेचने की बात नहीं आई है तो नहीं लिखेंगे. इसका टोटल करेंगे 20. ये टोटल होता है 44,000. ओके. तो अभी हमने रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश एंड बैंक अकाउंट लिखा 44,000. ये कैश मिला है ये बेचने पर. ठीक है. तो अब इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो कैश एंड बैंक में लिखने हैं. टू रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में हमने लिखा ना बाय कैश एंड बैंक. तो अब कैश एंड बैंक के डेबिट साइड, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन. पैसा आया किस वजह से आया, रियलाइजेशन करने की वजह से. तो टू रियलाइजेशन अकाउंट जितना वैल्यू टोटल मिला वही लिखना है 44,000. नंबर 2 जो है प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाय एक्स, मिस्टर एक्स एट बुक वैल्यू. तो एक्स ने प्लांट एंड मशीनरी को लेकर गए. प्लांट एंड मशीनरी हमने रियलाइजेशन के डेबिट साइड में लिखा था 20,000 का. अब मिस्टर एक्स लेकर जाएगा तो अब क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट. बुक वैल्यू बोला है तो यानी 20,000 में ही लेकर गया है तो 20,000 ही लिखेंगे. ब्रैकेट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी
टेकन, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी टेकन। तो ये फर्स्ट इफेक्ट आया बाय एक्स कैपिटल लिखे। अब पार्टनर्स कैपिटल में यहाँ पर आप लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये रियलाइजेशन में हमने ट्रांसफ़र किया था ना प्लांट एंड मशीनरी, तो वहाँ से अब गया एक्स के पास, तो एक्स के इसमें एंट्री आएगी। तो हमने रियलाइजेशन में लिखा बाय एक्स कैपिटल और यहाँ पर लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड। थर्ड तो सभी क्रेडिटर और वाई लोन को पेड किया इन फुल, ठीक है, पेमेंट कर दिया गया है। तो पेमेंट करेंगे तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे टू कैश एंड बैंक अकाउंट, टू कैश एंड बैंक अकाउंट। और यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर का जिक्र होगा, कितना वैल्यू है 21,000, ओके। और रियलाइजेशन का एक्सपेंस है वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर वाई लोन का अमाउंट नहीं लिखा जाएगा। वाई लोन का इसलिए नहीं क्योंकि हमने उसके लिए, वो इंटरनल पार्टनर है, वो थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है। तो उसका अकाउंट हमने सेपरेटली बनाया है वर्किंग के लिए। यहाँ पर हमने उसका अकाउंट प्रिपेयर किया था वाई लोन अकाउंट। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे टू कैश एंड बैंक अकाउंट। उसका फुल पेमेंट किया है 5,000। तो ये जो है टैली भी हो गया है, दोनों जगह पे 5,000 लिया, 5,000 उसको दे दिया, ठीक है। अब इसका जो सेकंड इफेक्ट है वो कैश एंड बैंक में यहाँ पर आएगा बाय वाइज लोन अकाउंट 5,000 इस तरह। बाय लोन कैश एंड बैंक में बाय लोन अकाउंट आएगा 5,000, लोन अकाउंट में टू कैश एंड बैंक आएगा। और यहाँ पर जो हमने क्रेडिटर और इसकी एंट्री की थी, क्रेडिटर और रियलाइजेशन की मर्ज कर दिया था इसको, तो यहाँ पे रियलाइजेशन में हमने लिखा टू कैश एंड बैंक अकाउंट। तो अब कैश एंड बैंक में हम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट 22,000। एक चीज़ याद रखना, डेटर्स जो है RDD 1,000 क्रेडिट साइड में लिखे, तो यहाँ पर बाज़ बच्चे के ध्यान में आएगा कि यहाँ पर पेमेंट क्यों नहीं किया, फुल पेमेंट की बात की। RDD जो है वो रिजर्व फॉर डाउटफुल वैल्यू होता है, तो उसका कोई पैसा जो कंसिडर नहीं होता। एक अमाउंट जो डेटर से लेने था वो नहीं मिलने वाला है, वो लॉस है, इसलिए यहाँ पर तो लिख दिया, यहाँ पर कोई एंट्री नहीं आएगी, ओके। तो सारी एंट्री हमने कर दी, अब टोटलिंग करना है, तो देखना है कौन सा साइड ज़्यादा है। तो यहाँ पर डेबिट साइड ज़्यादा लग रहा है, 70 + 90 98 होता है, 98,000 लिख दिया। यहाँ पर भी सेम वैल्यू 98,000 लिख देंगे। 21 + 1 22 26 66 86 टोटल आता है। तो 98 में से 86 माइनस करो तो 12,000 वैल्यू मिलेगा आपको। इसको हाईलाइट कर दो, यहाँ लिख देंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफ़र टू पार्टनर कैपिटल करेंगे एक्स वाई और जेड। 12,000 को उनके रेशियो के हिसाब से 12,000 5 + 3 + 2 यानी 10 होगा। 12,000 को 10 से डिवाइड करो, आपको 1 शेयर मिलेगा 1200, ठीक है। तो 12 × 6 करो, 12 × 3 करो, 12 × 2 करो, तो 12 6 आप करेंगे तो 7,200 आएगा। 12 3 आप करेंगे तो 54 3600 और 2,400 स्पेयर। सॉरी 12 5 करना था ना, इसका 5 रेशियो था, तो ये इधर 6,000 वैल्यू आएगा।
ये ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसको ट्रांसफ़र कर दिया टू रियलाइजेशन अकाउंट बोलकर, ये लॉस है 6000, 3600, 2400। अब पार्टनर्स कैपिटल का टोटल करना, 8000 इसका टोटल है, यहाँ पर 16000 मिलेगा आपको, यहाँ पर 30000 मिलेगा, 30000, 16000 और 8000। अब माइनस करेंगे तो वैल्यू मिलेगा 5600, 12400 और 4000। ये टू कैश एंड बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, एसेट को बेचा, ठीक है, उसमें से लाइबिलिटी को पे किया। अब जो बैलेंस वैल्यू है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो बिजनेस बंद हो रहा है। यहाँ पर हम लिख देंगे टू कैश एंड बैंक, और ये कैश एंड बैंक में टैली होना चाहिए वैल्यू। तो यहाँ पर आप ट्रांसफ़र करेंगे डेबिट क्रेडिट साइड में कैश एंड बैंक के बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स वाई और जेड, 4000, 12400, 5600। इसका टोटल करेंगे आपको मिलेगा 22000। अब ये होना चाहिए टैली, कौन सा, बैंक अकाउंट, कैश एंड बैंक। बैलेंस शीट नहीं बनाना, कैश एंड बैंक डिज़ोल्व हो रहा है तो कैश एंड बैंक बना के पेमेंट करके टैली होना चाहिए। तो 5 + 44 49,000 होता है। यहाँ पर भी आप देखो तो 49,000 मिलेगा आपको, 5 + 22 + 22 49,000। इस तरह टैली करना है। ओके, होप सो यू अंडरस्टूड दिस सम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।